یہ کہانی ان 5 معصوم حسن بے مثال کی حامل شریف گھرانے کی لڑکیوں کی ہے جنہیں ابلیس اپنی پرفریب چال میں پھنسا کر سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور پھر انہیں پر اسرار قوتوں سے مالا مال کر کے شیطانیت کے فروغ کے لیے معاشرے پر مسلط کر دیتا ہے، جہاں وہ تباہی و بربادی کے ایسے باب رقم کرتی ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، اور بالآخر شیطان کے ان شاگردوں کا ٹکراؤ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے سے ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس ایک عظیم روحانی قوت کی مالک پر اسرار عورت کا آنا جانا تھا، اور جس کا تعین ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی روح تھی یا زندہ حقیقت۔ اور یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں دلچسپیاں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں، اور پھر شیطان کے چیلوں اور بندگان خدا کے درمیان ایک انوکھی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور چشم تصور کو وہ یادگار مار کے دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے کہانی کے اختتام تک آنکھیں ہٹائے نہیں ہٹتی۔ وہ ایک بڑے سے پتھر کی آڑ میں چھپ گئی جس کے پاس وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور لڑکی سے اسے کوئی غرض نہ تھی، لیکن یشونت رائے کے لیے وہ اپنے ذہن میں پورا منصوبہ بنا رکھی تھی۔ چنانچہ اس نے بڑے احتیاط کے ساتھ یشونت رائے کی ران پر منہ مارا، اور اس وقت یشونت رائے ساتھی لڑکی سے اظہار عشق کر رہا تھا، اور اس نے بے اختیار اپنے جسم پر پڑنے والے زخم کو دیکھا اور پھر زخم لگانے والے کو، اور ایک دم اس کے منہ سے دھاڑ نکلی، سانپ! اور ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور راگنی کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ یشونت رائے کو سانپ نے کاٹا ہے۔ چنانچہ وہ یشونت رائے کے اوپر سے ہوتی ہوئی تیز رفتاری سے بڑے پتھر کے پیچھے پہنچ گئی، اور پھر اس نے ایک ایسی جگہ پناہ لے لی جہاں سے ان سب پر نگاہ رکھی جائے، اور یہ ایک ایسا درخت تھا جس کے تنوں میں سوراخ تھے، اور ان سوراخوں میں سے ایک میں جا بیٹھی۔ ادھر ایک دم یشونت رائے کی ساتھی لڑکی دہشت زدہ انداز میں چیخنے لگی، اور اس کی چیخیں سن کر وہاں موجود سارے کے سارے افراد یشونت رائے کے پاس پہنچ گئے۔ یشونت رائے کا بدن نیلا پڑتا جا رہا تھا، اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، اور اس کی ساتھی لڑکی چیخ کر لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یشونت رائے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ناگن کو یشونت رائے پر سے گزرتے ہوئے دیکھا، اور ساری سیر و سیاحت خاک میں مل گئی، اور سب لوگ بھاگ دوڑ میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد یہ قافلہ واپسی کے لیے چل پڑا، لیکن ان میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ساتھ لائے ہوئے برتنوں میں سے ایک میں راگنی چھپ کر بیٹھ گئی ہے، اور یہ برتن گاڑیوں میں لدے ہوئے تھے، اور گاڑیوں کے سفر کا اختتام راوت رائے کی شاندار حویلی پر ہوا، اور ایک دم سے کہرام مچ گیا۔ سب کے سب یشونت رائے میں مصروف ہو گئے تھے، اور چنانچہ راگنی کو آرام سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا، اور وہ تیز رفتاری سے رینگتی ہوئی ایک ایسی جگہ محفوظ ہے سمجھ کر جا بیٹھی جہاں اسے کوئی خطرہ نہ تھا۔ زہریلی ناگن انسان کا دماغ رکھتی تھی، اور وہ بھی انتقام برا دماغ۔ چنانچہ ہر کام سوچ سمجھ کر رہی تھی، اور کوئی غلطی اسے نقصان نہ پہنچا دے، اور وہ ایسی جگہوں کو منتخب کر رہی تھی جہاں سے ان لوگوں کی کارروائیوں کا بخوبی جائزہ لے سکے۔ راوت رائے شدت غم سے دیوانہ ہو گیا، اور چیختا پھر رہا تھا کہ ہائے میرا بیٹا، اور بھگوان کی سوگند اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جیتا نہیں رہوں گا۔ لاکھن سنگھ بھاگا پھر رہا تھا، اور شہر سے، بستیوں سے، آبادیوں سے اور جگہ جگہ سے ڈاکٹر، حکیم اور وید بلوا لیے گئے، اور سارے کے سارے یشونت رائے کا جائزہ لے رہے تھے۔ یشونت رائے کا رنگ نیلا ہو چکا تھا، لیکن یہ بات راگنی جانتی تھی کہ وہ مرے گا نہیں۔ شیطان نے راگنی کو یہ قوت دی تھی کہ وہ ایسا زہر اس کے جسم میں داخل کرے جس کے اثرات تو پورے کے پورے ہوں، لیکن اسے موت نہ ہو۔ البتہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں یشونت رائے کی جو کیفیت تھی وہ ایسی تھی کہ چند ہی لمحوں میں اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور سارے کے سارے حکیم، وید اور ڈاکٹر یہی بتا رہے تھے کہ راوت رائے کو یشونت رائے کی حالت بہت خراب ہے، اور کوئی بھی لمحہ اس کی موت کا لمحہ بن سکتا ہے۔ بہنیں الگ رو رہی تھیں، اور دوسرے رشتہ دار بھی جو چچا تائے وغیرہ تھے اور غم سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ یشونت ان کے لیے بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل تھا، اور غرض یہ کہ ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ پوری رات، پورا دن اور پھر دوسرا دن بھی گزر گیا، اور یشونت رائے کی سانسیں تو چل رہی تھیں لیکن اس میں زندگی کے آثار نہ تھے۔ ڈاکٹر، حکیم اور وید اپنی تمام تار کاروائیاں کر کے تھک چکے تھے۔ کچھ بزرگوں نے رائے دی کہ کسی سپیرے کو بلا لیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کا کام ثابت ہو،
और ये वो मौका था जब रागिनी को अपना काम सर अंजाम देना था, और तैयारियां तो पहले ही थी, और हवेली से थोड़े ही फासले पर वो एक जोगन के रूप में नमूदार हुई। आसन के कंधे पर सांप बंद करने वाला झोला लटका हुआ था और हाथ में बीन थी, और ऐसी मस्त बीन के देखने वाले देखते के देखते रह जाएं। वो फौरन ही कुछ लोग तो उसके पास पहुंच गए, और उनमें से रावत राय का एक भाई भी था, और उसने रागिनी को रोक कर कहा, मेरी बात सुनोगी देवी जी, और हमारे यहाँ एक लड़के को नाग ने काट लिया है, और क्या तुम नाग का जहर उतार सकती हो? रागिनी का चेहरा वैसे ही खूबसूरत था, और इस वक्त तो वो शोला जवाला बनी हुई थी, और देखने वाले पर वैसे असर पड़े, और फिर वह जानती थी कि उसे किस तरह और उन लोगों पर अपने असरात कायम करने हैं। चिराचस ने मध्यम लहजे में कहा, आशीष भगोनत ने मुझे यही तो मान सम्मान सौंपा है, कहाँ है वो जिसे नाग ने काटा है? और देवी जी चलकर देख लो, अगर तुमने यशोनत राय को ठीक कर दिया तो यूँ समझ लो कि सारा जीवन भी बन जाएगा। और रागिनी ने निगाहें उठाकर रावत राय के भाई को देखा और बोली, तुम सारे पापी एक जैसे होते हो, और मेरा जीवन कैसे बनाओगे? तुम अपने मरीज को तो ठीक नहीं कर सकते, और मेरा जीवन फौरन बनाने पर तुल गए। तू है तुम्हारी शक्ल पर। अरे नहीं नहीं देवी जी, क्षमा कर दें, आप बुरा मान गई। सुनो, मैं तुम्हें जो कुछ बता रही हूँ उसे गौर से सुनो। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये बात तुम्हें नहीं मालूम, और खबरदार मुझसे लेने देने की बात ना करना, वरना। माफ़ कर दीजिएगा देवी जी, माफ़ कर दीजिए। और वो लोग उसे बड़े मान और एहतमाम से अंदर लाए, और रावत राय अब भी धाड़े मार मार कर रो रहा था। रागिनी ने खूनी निगाहों से उसे देखा, और ये उसके बाप का कातल था, और यकीनी तौर पर इस वक्त उसकी अकल उसका साथ नहीं दे सकती थी, क्योंकि रागिनी में बहुत सारी तब्दीलियां हो चुकी थी। और उसके बावजूद रावत राय को क्या पड़ी थी कि रिस्क लाल की बेटियों को गौर से देखता। उसने तो बस अपनी शैतानियत में अपना काम कर डाला था। और रागिनी को देखकर उसने कहा, अरे ये किसे पकड़ लाए, कौन है ये? महाराज, ये सपेरन है, और अपने यशोनत राय का जहर उतारेगी। पागल हो गए हो? अरे मुल्क भर के डॉक्टरों और वीदों ने तो अपना काम कर लिया। रागिनी ने नफरत भरी निगाहों से रावत राय को देखा, और फिर यशोनत राय के करीब पहुंच गई। उसने यशोनत राय का जायजा लिया, और उसके बाद उसके जख्म के करीब बैठ गई। दूध का एक प्याला भरदा कर उसके पास रख लिया, और फिर उसने यशोनत राय की पिंडली के जख्म पर अपने होंठ रख दिए, और दूध भरे प्याले में यशोनत राय का जहर चूस चूस कर थूकने लगी। और देखने वाले गौर कर रहे थे, और जैसे जैसे दूध का सफ़ेद रंग नीला पड़ता जा रहा था, और यशोनत राय के चेहरे की नीलाहट कम होती गई, और दूध का प्याला नीले रंग से भर गया, और यशोनत राय का चेहरा सुर्ख हो गया। अब खून की रवानी बिल्कुल ठीक हो गई थी, और रावत राय आंखें फाड़े हुए उसे देख रहा था। और सारा जहर चूसने के बाद रागिनी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उधर यशोनत राय ने उन्हें आंखें खोल दी, और उसकी कराहती हुई आवाज़ उभरी, मैं कहाँ हूँ? और रावत राय ने आगे बढ़कर रागिनी के पांव पकड़ लिए। रागिनी ने नफरत से ठोकर मारी और कहा, थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रहे थे मेरे बारे में? देवी जी, आप महान हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, और जो हुआ मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से हुआ। ठीक है, मैं चलती हूँ। नहीं, आप नहीं जाएंगी देवी जी, आप यहीं रुकिए। और तो फिर तुम लोग एक नारा लगाओ और मैं रुक जाऊंगी यहाँ। हुक्म करें देवी जी। कहो, जे आशीष भगोनत। और वो लोग समझ तो कुछ भी ना पाए कि आशीष भगोनत कौन है, और शैतान ने अपना ये नाम सिर्फ उन्हीं लड़कियों को बताया था। और सब ने नारा लगाया, और रागिनी ने गर्दन हिलाते हुए कहा, अब ठीक है, और बोलो क्या चाहते हो मुझसे? ये हमारा लड़का बच गया था ना, बात करो इससे और पूछो अंदर से कैसा है अब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी, मगर ये सुंदर लड़की कौन है? और यूँ समझ लो कि इसने तुम्हारी जान बचाई है, यशोनत। और यशोनत ने रागिनी को सर से पांव तक देखा, और रागिनी का सहर काम कर रहा था। यशोनत ने आहिस्ता से कहा, देवी जी आप जाइए नहीं, आपको मेरी कसम है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। मेरा अकलौता बेटा मरते मरते बचा था, और हवेली में खुशियों का ठिकाना नहीं था। रागिनी को नहायत इज्जत और एहतराम के साथ हवेली के एक कमरे में ठहराया गया, और हवेली की औरतें रश्क भरी निगाहों से रागिनी को देख रही थीं। एक वो थी जिन्हें घर के झगड़ों ही से फुर्सत नहीं थी, और खाना पकाना, हांडी रोटी या फिर अपने आप को बनाना संवारना। और एक ये जंगलों में फिरने वाली आवारा हरनी थी, जिसे बड़े बड़े एक अनोखा नाम दे रहे थे। और वैसे भी रागिनी ने जो रूप इख्तियार किया था वो ऐसा था कि देखने वाला उसे एक निगाह देखकर देखते का देखता ही रह जाए। बहरहाल सारे का सारा मंसूबा बड़ी कामयाबी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, और रागिनी को इज्जत और एहतराम का वो मुकाम दिया गया कि अच्छों को ना मिले।
रावत राय तो उसे देवी मान रहा था और उधर यशोनत राय के ज़हन में पर उसका तस्वर नक्श हो गया। आवारा मजाज नौजवान था और ठीक होने के बाद वही तमाम तस्वर उसके ज़हन में जा गया था। और फिर उसने कहा, वो लड़की कहाँ गई लाखन सिंह, और जिसने मुझे नया जीवन दिया है? महाराज, आपको नया जीवन देने वाली को नज़रअंदाज कैसे किया जाता है? वो यही है, दोबारा कभी मेरे सामने नहीं आई। देवियाँ आसानी से क्या किसी को दर्शन देती हैं? लेकिन दास तो देवी के दर्शन कर सकते हैं ना, क्यों नहीं? और फिर देवी भी ऐसी जिसे देखकर मन के सारे दरवाजे खुल जाएं और मैं उनके दर्शन को जाऊंगा। और फिर यशोनत राय को भला कौन रोक सकता था? वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके कमरे में दाखिल हो गया जहां रागिनी मौजूद थी। होशो हवास के आलम में यशोनत राय ने एक बार फिर उसे देखा और उसकी अजीब सी कफियत हो गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, जे देवी जी जे। और तुम लोग मुझे क्यों गुनाहगार कर रहे हो? मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब सपेरन हूँ और जिसका संसार में कोई भी नहीं। दर बदर भटक रही हूँ और यहाँ आई हूँ, यहाँ से कहीं आगे चल निकल जाऊँगी। और मैं तो कहती हूँ कि बस अब मुझे जाने दो, और मेरी वजह से तुम लोगों को कोई फ़ायदा हो गया है और मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं। जो किसी को नया जीवन देते हैं देवी जी, उन्हें इस तरह तो नहीं जाने दिया जाता। देखो, मैं नहुसत का निशान हूँ और जितनी जल्दी हो सके मुझे अपने घर से निकाल दो। ऐसी नहुसत जो किसी मरते हुए को नया जीवन दान कर दे, भगवान सबके घरों में पहुँचाए। और आप ऐसी बातें क्यों करती हैं देवी जी? और उसी वक्त रावत राय भी अंदर आ गुस्सा आया, और मैंने आपकी बातें सुन ली हैं देवी जी। महान देवी, अगर आपके संसार में कोई नहीं तो हम तो हैं ना, और मेरे बेटे को नया जीवन देकर आपने मुझे खरीद लिया है, और काश मैं आपको इसका बदला दे सकूं। पिताजी, ये यहाँ से जाने के लिए कह रही थी तो और क्या करूं? और कौन है मेरा यहाँ? और मैं तो बस संसार में जीवन के दिन पूरे कर रही हूँ। और रागिनी ने दुख भरी आवाज़ में कहा, हमें अपने दुख नहीं बताओगी देवी? खाना बदोश्त पैरों की एक आबादी में पैदा हुई और माँ जन्म देते हुए मर गई, और पिता कुछ अरसे के बाद संसार से सदार गए और दूसरों के रहमो करम पर पली बढ़ी। और एक बार कबीला बारिश में गिर गया। ज़्यादातर लोग सैलाब में मर गए और जो बचे वो बीमार होकर इधर उधर जा पड़े, और मुझे भी एक अस्पताल में पहुंचा दिया गया। 16 महीने उसी अस्पताल में रही और फिर वहां से निकाल दी गई। ना कबीला था और ना कुछ और संसार में कहीं जगह ना मिली, और सांपों से दोस्ती बचपन से थी। और ये बीन बनाई और बस संसार देखने चल निकली, और आपका बेटा मेरी वजह से जी गया। और ये आशीष भगोनत की कृपा है। ये आशीष भगोनत कौन है? मेरे महाराज, मेरे धर्मात्मा और मेरे परमात्मा। और रागिनी ने जवाब दिया, खैर छोड़ो इन बातों को। और क्या नाम है बेटी तुम्हारा? रावत राय ने पूछा। रागिनी उसी लिए सुरों में भरी हुई हो। और यशोनत राय मुस्कुराकर बोला, अब मुझे जाने दो यहाँ से। नहीं रागिनी, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारा मादी जो कुछ भी रहा हो, सब कुछ भूल जाओ और मेरे पास रहो मेरी बेटी बनकर। और मेरी और भी बहुत सी बेटियां हैं और तुम भी उन्हीं में रहोगी। और खबरदार यहाँ से जाने की बात ना करना। आप सोच ले महाराज, रागिनी ने कहा, और ये फैसला सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। तो ठीक है, आपकी मर्जी। और उसके बाद वो आंसू बहाने लगी और बाप बेटा देर तक उसे तसल्लियाँ देते रहे। और उसके बाद वह दोनों चले गए। लेकिन यशोनत राय थोड़ी देर बाद आ मौजूद हुआ और अंदर दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, पिताजी तो बस सठिया गए हैं और ऐसे अंदर गुस्से के बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता था। और रागिनी ने निगाहें उठाकर यशोनत राय को देखा। यशोनत की निगाहों में गुनाह नाच रहा था और रागिनी मुस्कुराने लगी और फिर बोली, महाराज, रावत राय तो बहुत अच्छे हैं और तुम उन्हें मेरे सामने बुरा मत कहना, वरना मैं उनसे कह दूंगी। अरे अरे, बुरा कौन कह रहा है उन्हें? पर देखो ना, और मैं अकेले में तुमसे कुछ बातें करना चाहता था और वो मुझे इसका मौका ही नहीं दे रहे थे। अकेले में क्या बातें करना चाहते हो मुझसे? रागिनी, मेरे मन में तुम्हारे लिए एक जगह पैदा हो गई है। नहीं, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं नहुसत का निशान हूँ। मैं इस नहुसत के निशान को अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहता हूँ। मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रागिनी। और रागिनी कुछ देर खामोश हो गई और उसके बाद उसने कहा, सुनो, ये जो कुछ तुम कह रहे हो इस पर गौर भी कर लिया करो। और मैं रावत राय का अकेला बेटा हूँ और हमारी इतनी बड़ी जायदादें हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, और ये सब मेरी मलकियत हैं। ठीक है, मगर महाराज रावत राय तैयार हो जाएंगे इस बात पर? कहा ना कि ये मेरा काम है, तो बात कर लो, लेकिन सुनो, उसके बगैर मेरे पास कभी मत आना।
मैं बस देखने के लिए आया करूंगा तुम्हें, और बाकी काम मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद कर लूंगा। यशवंत राय चला गया तो रागिनी के होंठों पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट फैल गई। शिकार अपने जाल में फंस गया था और रागिनी यही तो चाहती थी। और आशीष बगोनत ने उसे जो हदायत दी थी वो उससे मुख्तलिफ तो नहीं थी। वहां से उसे हदायत मिली थी कि रावत राय के परिवार में दाखिल होकर उसके सारे खानदान को ख़त्म करना है, और अब रागिनी उन लोगों को अपना दूसरा रूप दिखाने वाली थी, और उसके लिए उसके पास पूरा प्रोग्राम मौजूद था। रावत राय के खानदान पर वाकई नहुसत का निशान छा गया, और अब मौत उसके और उसके घर वालों के नज़दीक चकरा रही थी। रावत राय नहीं जानता था कि वो खुद किस खौफनाक बला को अपने घर ले आया है, और ये बला अब उसकी शाहराह के करीब है और उन लोगों का खून चूसने के लिए बेकरार है। आशीष बगोनत ने रागिनी को एक जिम्मेदारी दे दी थी, और बाकी तमाम खौफनाक लड़कियां आशीष बगोनत के ज़ेर असर आकर ऐश की ज़िंदगी गुजार रही थीं, और अभी तक उनमें से किसी को कोई काम नहीं सौंपा गया। लेकिन अब उनके अंदाज बिल्कुल बदल गए थे। जिस जगह आशीष बगोनत ने उन्हें रखा था वो बड़ी शानदार थी और बिल्कुल महल जैसी, और वहाँ वो लोग बड़े ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार रही थीं। नौकर चाकर ऐशो इशरत की ज़िंदगी, और उसमें कोई शक नहीं था कि रिस्क लाल के बारे में जब भी उन्हें ख्याल आता उनके दिल खून के आंसू रोने लगता। लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया था, और उन्हें एक बड़ा सहारा मिल गया। जिस ज़िंदगी का उन्होंने ख्वाब में तसव्वुर भी नहीं किया था वो उन्हें हासिल हो गई थी। और सुबह ऐश के साथ उठी और घर के काम काज के लिए नौकर चाकर मौजूद थे। उन्हें उम्दा किस्म का नाश्ता बनाकर दिया जाता और सब कुछ उन्हें हासिल हो जाता जो उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। फिर एक दिन यूं हुआ कि रूपा कुछ खरीदारी के लिए बाजार गई, और एक खूबसूरत से जनरल स्टोर में रूपा ने अपने लिए और अपनी बाकी बहनों के लिए बहुत से लिबास खरीदे, और जनरल स्टोर के दूसरे गोशों में जाकर अपनी पसंद की चीज़ें देखने लगी। अभी वो इन चीज़ों का इंतखाब कर ही रही थी कि एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान उसकी अकल में आ खड़ा हुआ, और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। रूपा को एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, और उसने पलट कर देखा और फिर नौजवान के हसीन चेहरे को देखती रह गई। हेलो, नौजवान ने रूपा को मुखातब करके मुस्कुराते हुए कहा। तो रूपा को एक अजीब सा एहसास हुआ और फिर जल्दी से बोली, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं इस स्टोर का जनरल मैनेजर हूं मैडम, और आप हमारी बहुत अच्छी ग्राहक हैं, और ना जाने क्यों मेरा दिल आपकी जानब माइल हो जाता है। माफ़ कीजिएगा, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। रूपा को उसके बोलने का अंदाज बहुत पसंद आया और वो कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो आप हैं इस स्टोर के जनरल मैनेजर। हाँ, आप अपनी पसंद की चीज़ें मुंतखब कीजिए, और क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। और रूपा को बहुत सी समझ खुद ब खुद आ गई थी, और जब तक वो अपने बाप के साथ रहने वाली मासूम लड़कियां थीं उन्हें कुछ नहीं आता था, और दुनिया को बहुत कम देखा था, और दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन जब से शैतान की कुर्बत हासिल हुई थी उन्हें खुद ब खुद सारे काम आ गए थे। बहरहाल वो खरीदारी करती रही, और जब इन तमाम चीज़ों की अदायगी का वक़्त आया तो मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक आप हमारी ग्राहक हैं, और मैं नहीं जानता कि आप हमारी पहली बार यहाँ खरीदारी के लिए आई हैं या अक्सर आती रहती हैं, लेकिन आज की ये खरीदारी मेरी तरफ से रही। मैं समझी नहीं, और रूपा ताज्जुब से बोली, ये मेरी तरफ से आपके तोहफे के तौर पर? अरे नहीं नहीं, मैं कोई गरीब लड़की नहीं हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। यकीनन आप गरीब नहीं, और शक्ल सूरत से भी अंदाज़ा होता है, और मेरी दुआ है कि आपको इससे 8 गुना ज़्यादा मिल जाए, लेकिन इस एक गरीब का तोहफा समझकर ही कबूल कर लीजिए। आपने शर्मिंदा कर दिया मुझे। और क्या नाम है आपका? हरीलाल। मिस्टर हरीलाल, मेरा नाम रूपा है। बहरहाल मैं आपके शुक्रगुजार हूँ, और सिर्फ आपकी खुशी पूरी करने के लिए मैंने ये चीज़ें कबूल कर ली हैं। मगर आप ये बताइए कि आप इसके बदले में आपको क्या दूँ? और इंसान बहुत खुद गर्ज होता है मिस रूपा, और बेमकसद कभी किसी से ताल्लुक़ कायम नहीं करता, लेकिन फिर भी बहरहाल मैं आपसे एक चीज़ मांग सकता हूँ। जी जी, और रूपा ने पुरमसरत लहजे में कहा, दोबारा भी स्टोर पर ज़रूर आइएगा, और ये बताइए कि कब आएंगी? रूपा मुस्कुरा दी और फिर बोली, लेकिन कुछ खरीदूंगी नहीं, आप नाराज़ तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर कल मैं दोबारा आऊँगी। और रूपा को ये नौजवान पसंद आया था। दूसरे दिन फिर वह स्टोर पर पहुँच गई, और वो उसका मुंतज़िर था। उसने कहा कि आज रात का खाना आप मेरे साथ खाएंगी, और आप पर कोई पाबंदी तो नहीं? नहीं, छोटी बहनों के अलावा और कोई नहीं है, और माता पिता इस संसार में नहीं रहे, बस छोटी बहनों के साथ रहती हूँ। चलिए फिर ये तय रही कि आप मुझसे मुलाकात करती रहेंगी।
और रूपा ने जिंदगी में पहली बार एक पुरतकल्लफ होटल देखा था और हरी लाल उसके साथ था। रूपा को हरी लाल पसंद आया और फिर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन भी उससे मुलाकात हुई और रूपा ने हरी लाल से उसके बारे में पूछा तो वो बोला, बस मैं भी इस संसार में अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरा, और यूँ समझ लीजिए कि अकेला रहता हूँ और अकेला ही जीवन गुजार रहा हूँ। कहाँ रहते हैं आप? एक बहुत ही छोटा फ्लैट है मेरा, और अगर आप कल मेरे फ्लैट पर चलें तो मुझे बेपनाह खुशी होगी। और रूपा ने वादा कर लिया। लेकिन दूसरे दिन दोपहर को उस वक़्त जब वो आराम करने के लिए लेटी थी, अचानक उसे अपने अक्ल में सरसराहट महसूस हुई। पलट कर देखा तो आशीष भगोनत मौजूद था और रूपा ताज़ीम के लिए उठ खड़ी हुई। और तो आशीष भगोनत ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सुनो, तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानना मेरी जिम्मेदारी है और मैं होशियार रहता हूँ कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दे। वो लड़का जो तुम्हें मिला है बड़ा नेक है और संसार में नेकियों के काम करता रहता है। मैं उसकी नेकियों से तंग आ गया हूँ और कल तुम उसके साथ उसके फ्लैट पर जाओगी और उसके बाद उससे ज़िंदगी छीनना तुम्हारा काम है। और ये लो खंजर, अपने लिबास में छुपा कर रखो और तुम्हारे साथ बैठेगा, हमसे बोलेगा और थोड़ा समय उसके साथ बिताना और उसके बाद ये खंजर निकाल कर सीने में घोंप देना, क्या समझी? और रूपा शशदर रह गई और शैतान तो ये कहकर गायब हो गया। लेकिन वो सर पकड़कर बैठी रही और बहुत देर तक वो गौर करती रही। और उसके बाद उसने अपने दिल में फैसला कर लिया कि शीश की कुर्बत बाकी सारे कामों से अच्छी है और संसार किसी को कुछ नहीं देता। अगर नेकियां करना चाहो तो यक तरफा करते रहो और जवाब में कुछ नहीं मिलेगा, और वो करो जो दुनिया चाहती है और अपनी 1.5 ईंट मस्जिद में अलग बनाओ। बहरहाल ये सारी बातें सोचकर उसने फैसला कर लिया कि जो कुछ उसने कहा है वही करेगी और खंजर उसने एहतियात से अपने पास छुपा लिया। फिर दूसरे दिन शाम को उस वक्त जब स्टोर बंद हुआ तो हरी लाल उसके पास पहुंच गई। वो उसका इंतज़ार कर ही रहा था और हरी लाल ने पुरमसरत अंदाज में उसका इस्तकबाल किया और फिर वो उसे अपने छोटी से खूबसूरत कार में लेकर अपने फ्लैट की जानब ले चला। हरी लाल ने उसे छोटा सा फ्लैट कहा था लेकिन वो इंतहाई खूबसूरत था। रूपा ने उसके फ्लैट की तारीफ की तो हरी लाल बोला, बस ये सुनसान और तनहा घर है और इस घर को एक मालकन की ज़रूरत है। अगर तुम कबूल करो रूपा तो मेरे ऊपर एहसान होगा, मगर तुम्हारी ज़िंदगी और मेरा मतलब है कि तुमने अब तक जीवन कैसे गुजारा? और रूपा ने सवाल किया और हरी लाल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बस यूं समझ लो कि माता पिता बचपन में ही साथ छोड़ गए और दुनिया की ठोकरों में पला बड़ा और दुनिया की ठोकरों में ही जवान हुआ और फिर तकदीर आहिस्ता आहिस्ता साथ देती गई और मैंने हमेशा नेक काम किए और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और तकदीर ने मेरा साथ दिया और आखिरकार यहाँ तक पहुँच गया। क्या तुम्हें तुम्हारी नेकियों का फल मिला? मैं नहीं जानता कि नेकियों का फल कैसा होता है, बस जो कुछ भी हो तुम्हारे सामने हूँ। संसार बदल गया है, इंसान बदल गए हैं और नेकियों का फल जैसा मिलता है मैं तुम्हें बताऊँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और हरी लाल ने जवाब दिया और रूपा उसके बिल्कुल करीब था और वो उसकी सांसें रूपा के सांसों से टकरा रही थी और दफतन ही रूपा ने अपना हाथ नीचे किया और आस्तीन में छुपे खंजर का दस्ता उसके हाथ में आ गया। हरी लाल को कुछ नहीं मालूम हो सका था और वो उस वक़्त चौंका जब खंजर का फल नेकियों का फल साबित हुआ और उसकी पिसलियों के दरमियान उतर गया। रूपा ने लंबा चौड़ा खंजर दस्ते तक हरी लाल के सीने में उतार दिया और एकदम पीछे हट गई। वो हरी लाल के चेहरे पर मौत का तासर देखना चाहती थी और आशीष भगोनत का यही हुक्म था, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हसरत हैरत के नकूश फैल गए। हरी लाल ने अचानक ही खंजर अपने सीने से निकालकर एक तरफ डाल दिया और रफ्ता रफ्ता उसका चेहरा बदलने लगा। अब रूपा के हैरान होने की बारी थी और थोड़ी देर तक वो हरी लाल को देखती रही और जिसके जिस्म से खून का एक कतरा भी नहीं टपका था। और फिर वो अचानक चौंक पड़ी। हरी लाल के चेहरे में तब्दीलियां पैदा हो रही थी और थोड़ी देर बाद जब उसके चेहरे के तमाम नकूश बदल गए तो दफतनी रूपा के ज़हन को एक शदीद झटका लगा और उसके सामने आशीष भगोनत मौजूद था। रूपा शिद्दत हैरत से मुंह खोलकर रह गई और वह फटी फटी आंखों से आशीष भगोनत को देख रही थी और आशीष भगोनत के होठों पर मुस्कुराहट फैलती जा रही थी। तब रूपा के मुंह से निकला, जे भगोनता और जे रूपमती की, और ये क्या है भगवान? हाँ, एक तरह से इसे अपना इम्तिहान भी समझ लो और रूपा तुम इस इम्तिहान में पूरी तरह कामयाब हुई हो। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि अपने मन के घाव के लिए तुम अपने आशीष भगोनत को भूल सकती हो या नहीं।
अब मुझे तुम पर एतमाद है। ये मैं ही था जो तुम्हें स्टोर के मैनेजर की हैसियत से मिला। देखो, संसार बड़ा कठोर है और यहाँ तुम्हें एक से एक बड़ा इंसान मिलेगा। और पहले इन इंसानों को बहकाने में मुझे बड़ी मुश्किल पेश आती थी। अपने काम का आगाज तो मैंने न जाने कब से किया हुआ है। एक लंबे अरसे तक मैं अपनी कोशिशों में नाकाम रहा और परेशान रहा कि तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि घोड़े के भी दिन फिरते हैं, और जो लोग मेरे बरीद बन चुके थे वो खुद इतने बुरे हो गए थे कि मुझे उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पेश आई। वो बुराइयों में खुद कफील हो गए और सब कुछ करने लगे जो मैं चाहता था। क्या समझी? और इस संसार में बड़े बड़े किस्से कहानियां बिखरे पड़े हैं और मैं तुम्हें नेकी करने वालों का बुरा हाल दिखाना चाहता हूं। समझ लो कि जो लोग बेवकूफ़ी करते हैं वो अब भी नुकसान में हैं। और संसार की कहानियों में से कुछ कहानियां तुम्हारे इल्म में आनी चाहिए। एक सवाल कर सकती हूँ बगुंता? 1000 सवाल करो, क्या पूछना चाहती हो? रागिनी कहाँ है? देखो, कभी कभी मैं भी कुछ नेकियां करने पर तुल जाता हूँ। अब तुम उसे कुछ भी समझ लो, और ये काम मैं अपने चेले चाटों के लिए ही करता हूँ। और रावत राय ने तुम्हारी पिताजी के साथ जो कुछ किया, और रागिनी उसका इंतकाम लेने के लिए उस वक़्त रावत राय की हवेली में मौजूद है। और जैसा कि मैंने तुमसे कहा, डूबते चांद की रात तुम सब उस खंडर में जमा होकर एक दूसरे से मुलाकातें करोगी। चुनाचा उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और तुम्हें मैं जो बता रहा था वो ये है कि एक जगह है शामगढ़, और तुम शामगढ़ चली जाओ। पहला काम तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ, और अभी मैंने सिर्फ रागिनी को काम पर लगाया है, और वो भी अपना काम पर, यानी कि वो अपने पिता के मौत का इंतकाम ले। और खेल लंबा है उसका, और तुम्हें ये छोटा खेल खेलो और तमाशा देखो कि क्या होता है। शामगढ़ में एक जगह हवा महल, और हवा महल इस वक्त एक आदमी ने खरीदा है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा? हाँ, उसने एक इश्तहार दिया था अपने असिस्टेंट के लिए, और सारी बातें तय हो चुकी हैं। और तुम्हें मिस किरण कहकर पुकारेगा, और किरण कुमारी समझ लो। हवा महल एक असीब ज़दा हवेली है, और वहाँ तुम्हें जो वाक़यात पेश आएंगे वो समझ लो, और तुम्हारे लिए मेरा और दान है। रेल में बैठकर जाओगी और शामगढ़ उतरोगी, और वहाँ से तांगे से हवा महल जाने के लिए कह देना, और वह तुम्हें पहुँचा देगा। और बस। और रूपा अजीब सी कैफियत महसूस कर रही थी, और आशीष बगोनत ने कहा, और अब तुम जाओ। अगर दोबारा इस फ्लैट को तलाश करने की कोशिश करोगी तो ये यहाँ नहीं होगा, और अगर होगा तो यहाँ कोई और ख़ानदान रह रहा होगा। और अगर उस स्टोर में जाओगी तो वहाँ तुम्हें हरीलाल नाम का कोई मैनेजर नहीं मिलेगा, और तलाश भी मत करना ऐसी किसी चीज़ को। और मेरा काम उसी तरह के होते हैं। चलो आओ, बाहर चलें। रूपा अजीब से अंदाज में लड़खड़ाती हुई बाहर निकल आई, और फ्लैट से नीचे उतरते ही शैतान तो गायब हो गया। लेकिन रूपा लड़खड़ाते कदमों से अपने आने वाले वक़्त के बारे में सोचती हुई अपने घर की जानब चलने लगी। और शैतान जो सदियों से अपना ये खेल खेलता चला आ रहा था, बस कोई कमज़ोरी उसके जाल में फंसा तो समझ लो जिंदगी से गया। 5 खौफनाक लड़कियां 5000 दास्तानों को जन्म देने के लिए शैतान की शागिर्दी इख्तियार कर चुकी थीं, और रफ्ता रफ्ता शैतान उन्हें अपने तखरीबी अमल के लिए मैदान में ला रहा था। चुनाचा रागिनी के बाद अब रूपा और हवा महल जाने के लिए तैयारियां कर रही थी। और हवा महल दर हकीकत एक दर्दनाक लेकिन सनसीखेज दास्तान का अमीन था। वो दास्तान जिसमें दर्द, आंसू, आहें और उसके बाद जिंदगी के भयानक तीन वाकयात छुपे हुए थे। हवा महल के मालिक जागीरदार चंद्रभान था, और चंद्रभान की जागीर बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, जहां उसकी सरहदों का खात्मा होता था। और वहां से एक और बड़े जागीरदार वीर सिंह की ज़मीनें शुरू होती थीं। और ज़र, जन और ज़मीन तो झगड़े की बुनियाद हमेशा से रहे। चुनाचा चंद्रभान और वीर सिंह के दरमियान शदीद तरीन दुश्मनी चली आ रही थी, और ये दुश्मनी बहुत ही संगीन नोयत की थी। और बेशतर बार उन दोनों के दरमियान खून रेत झगड़े हो चुके थे, और जिनमें दोनों तरफ के बेशुमार आदमी मारे गए। लेकिन फिर एक दर्दनाक कहानी ने जन्म लिया, और चंद्रभान की बेटी सरूजा दीवानी के वन दिन सैर को निकली तो उसका घोड़ा भड़क गया, और वो वीर सिंह के सरहदों में जा पहुंची, जहां वीर सिंह का बेटा सूरज सिंह उसे देखने में कामयाब हो गया। सूरज सिंह ने सरूजा के भड़कते हुए घोड़े को संभाला, और दोनों एक दूसरे के शहदाई हो गए। लेकिन ये मालूम करके कि सूरज वीर सिंह का बेटा है, और सरूजा के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उसने गमनाक निगाहों से सूरज सिंह को देखते हुए कहा, और तुम जानते हो कि मैं किसकी बेटी हूँ? जानना चाहता हूँ, और चंदन बान है मेरे पिता का नाम। और सूरज मुस्कुरा दिया और फिर बोला,
یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں اپنے پیتاؤں کی اس دشمنی کو ختم کرنے کا باعث بن جائیں، اور یہ دشمنی اتنی معمولی نہیں ہے کہ ختم ہو جائے، ہمیں خود ختم ہونا پڑے گا۔ تو خود ختم ہو جائیں گے۔ اور سورج سنگھ نے دلیری اور بے خوفی سے کہا، اور بھگوان نہ کرے، اور میں تو کہتی ہوں کہ بھگوان میری عمر بھی تمہیں لگا دے۔ اور سروجا نے محبت بھرے انداز میں کہا، اب یہ بتاؤ کہ ہماری ملنے کی کیا ترکیب ہو؟ اور وہ تو میرا گھوڑا بھڑک کر سرحدوں کے پار آ گیا ہے، ورنہ سرحدوں تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں تم سے تمہاری حویلی میں آ کر ملوں گا۔ اور سورج سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، پاگل ہو گئے ہو؟ اگر کسی کو شبہ بھی ہو گیا تو وہ سب تمہارے جیون کے دشمن ہو جائیں گے، اور بھگوان نہ کرے تمہیں ہماری حویلی میں کوئی نقصان پہنچے۔ اور سروجا محبت سے بولی، اسے تو مجھ پر چھوڑ دو، نہیں کوئی اور ترکیب سوچنا پڑے گی۔ اور پھر دونوں جدا ہو گئے۔ سروجا سورج سنگھ کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور رات کی تاریکی میں اسے سورج سنگھ بہت یاد آ رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، اور اس نے کہا، ہائے رام، کوئی ایسی ترکیب ہو جائے کہ سورج اس سمے میرے پاس آ جائے۔ کاش تم بھگوان سے کہتی کہ بھگوان، سورج سارے جیون کے لیے میرا ہو جائے، تو یقیناً اس کی تمہاری یہ بات بھگوان مان لیتا۔ اور یہ آواز سورج سنگھ کی تھی۔ اور سروجا شدت حیرت سے دیوانی ہو گئی، اور سورج اس کے سرہانے موجود تھا، اور سروجا اس سے لپٹ گئی۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ اور سورج سنگھ کی ہیبت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اور تم نے یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ اور اس سے پہلے صرف سنا تھا کہ پریم کرنے والے اسی طرح ایک دوسرے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، اور ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے، اور اب دیکھ بھی لیا۔ مگر تم؟ ہاں، ضروری تھا کہ میں یہ بھیس بدل کر تمہاری حویلی کے ملازم کی حیثیت سے ہی اندر آ سکتا تھا، اور بھگوان تمہیں محفوظ رکھے، سروجا نے کہا۔ اور اس کے بعد وہ دونوں اسی طرح راتوں کو ملتے رہے، اور سورج سنگھ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک معمولی ملازم کا بھیس بدل کر حویلی میں آتا، اور ساری رات دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے۔ لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک رات جب سورج قلعے میں داخل ہوا اور سروجا کے پاس پہنچا تو کچھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا، اور چاروں طرف سے گھیر کر اسے پکڑ لیا گیا۔ اور پھر جب سورج کو چندر بان کے سامنے پیش کیا گیا تو چندر بان اسے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ویر سنگھ کا بیٹا ہے، اور دونوں اس قدر دشمن تھے کہ ایک دوسرے کے چندر بان نے ذرا بھی رحم نہیں کیا، اور سورج کو قلعے کے مشرقی حصے میں قید کر دیا گیا، اور اس کے بعد اسے شدید اذیتیں دی جانے لگی۔ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کا جسم جگہ جگہ سے داغ دیا گیا، اور پھر اس کی آنکھیں نکالی گئیں، اور اس کے بعد اسے سروجا کے سامنے لایا گیا۔ اور سروجا نے یہاں ایک عجیب و غریب کردار کا مظاہرہ کیا۔ چندر بان سے پوچھا کہ کیا وہ اس لڑکے کو جانتی ہے، اور کیا وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے؟ تو سروجا نے باپ کے خوف سے جھوٹ بولتے ہوئے سورج سنگھ پر الزامات لگائے، اور کہا کہ وہ زبردستی اس کے خوابگاہ میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے پریشان کرتا ہے۔ وہ خود سوچ رہی تھی کہ کسی وقت مہاراج چندر بان سے شکایت لگائے اور کہے کہ ان کے پہرے دار کیا کرتے ہیں، اور چندر بان آگ بگولا ہو گیا۔ لیکن سورج کو سب سے زیادہ غم اور نقصان اسی وقت ہوا تھا جب اس کی آنکھیں نکالی گئی، اور اب وہ کسی کی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ ایک رات اسے آتش دان کے اوپر لٹکا کر آگ میں جلا دیا گیا، اور اس کے نیچے آگ روشن ہو گئی، اور اس کے سارے بال اور چہرہ جلنے لگا، اور اس نے چیختے ہوئے کہا، سروجا، تو نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا، اور تو نے کہا تھا کہ تو میرے لیے سارا جیون مار دے گی، لیکن تو نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے تو یہ سمجھ لے کہ میں تیرے اس خاندان سے انتقام ضرور لوں گا، اور اس وقت تک میری آتما شانت نہیں ہوگی جب تک اس خاندان کا ایک بھی فرد اس زمین پر زندہ ہے۔ اور تو نے سمجھ لیا سروجا، تو نے سمجھ لیا، اور میں تجھے تیرے خاندان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ داستان سینہ بہ سینہ چلی آ رہی تھی، اور ہوا محل کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اسیب زدہ محل ہے، اور اس اسیب زدہ محل کو ایک بے وقوف امیر زادے نے خریدا تھا، لیکن قصور اس کا بھی نہیں تھا، اور وہ یورپ سے آیا تھا بے پناہ دولت لے کر اور یورپ کی عقل لے کر۔ اس نے یہاں آ کر جو کھیل کھیلا وہ بڑا عجیب تھا، اور بہرحال اس کے بارے میں ساری تفصیلات تو روپا کو وہاں جانے کے بعد ہی معلوم ہو سکتی تھیں۔ آشیش بھگونت نے اسے تمام رموز سے آگاہ کر کے اپنے کسی خاص مقصد کے تحت شام گڑھ روانہ کیا، اور ریل کا سفر شام گڑھ پر ختم ہو گیا، اور جب وہ اپنا مختصر سامان لے کر نیچے اتری تو ایک لمبے قامت کے دبلے پتلے چہرے والے شخص نے، جس کا بدن چہرے سے بالکل مختلف معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا، مس کرن، اور میرا نام پورن لال ہے، اور شام گڑھ میں ہی آپ کا میزبان ہوں، آپ آئیے اور براہ کرم میرے ساتھ چلیے۔
पूरन लाल की आंखों में इस तरह की रोशनी चमक रही थी जैसे उसने एक नौजवान और खूबसूरत लड़की को देखकर मुस्तकबल के बारे में बहुत सारे मंसूबे बना लिए हों। लेकिन उसके फरिश्ते भी नहीं जानते थे कि वह किस खौफनाक लड़की को अपने साथ लिए जा रहा है। जिस मकान में वह दाखिल हुआ वो छोटा सा था और वहाँ जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। बज़ाहिर पूरन लाल का रवैया बहुत ही अच्छा था, लेकिन इंसान के अंदर क्या क्या एहसासात पल रहे होते हैं और उसका अंदाज़ा तो बाद में ही होता है। खाने पीने के बाद जब पूरन लाल उसके पास बैठा तो उसने कहा कि हमें अपने दोस्त दयाल सिंह के पास चलना है और मिस किरण आपको दर हकीकत दयाल सिंह के लिए ही उधर भेजा गया है। दयाल सिंह के बारे में इतना बता दूं कि वह नहायत निडर और बहादुर इंसान है और यूरोप में सारी ज़िंदगी गुजारी है और बेहद दौलतमंद है और महम जोई उसका शौक़ है और दुनिया के दुश्वार गुजार जेलों और अनजाने इलाकों में घूमना उसका ख़ास मशगला रहा है और मेरी उससे बहुत पुरानी मुलाकात है और उसके बयान करदा वाक़यात इतने पुरअसरार और लर्ज़ा खेद होते हैं कि सुनने वालों पर हैबत तारी हो जाती है। कभी कभी तो ये एहसास होता है कि दयाल सिंह एक कहानी निगार है और झूठ बोल रहा है, लेकिन वो जिस संजीदगी, खुलूस और रवानी से ये वाक़यात बयान करता है उससे ज़ाहिर होता है कि उसकी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ सही और सच है। और मैडम, हकीकत है कि मैं पहली बार उससे मुतासर हुआ हूँ और मेरा बहुत ही अच्छा और गहरा दोस्त है और उसके लिए मैं शामगढ़ आया हूँ और यहाँ से हमें उस तक पहुँचना है। और मैं आपको ज़रा मुख्त से तफसील बता दूँ। एक दिन वो इत्तफाक़ी तौर पर मुझे एक और शहर में दस्तयाब हुआ और उसने मुझे देखकर खुशी का नारा लगाया। उसके बाद मेरे साथ एक होटल में चाय पीता हुआ बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई पूरन लाल कि तुम मुझे यहाँ मिल गए, और यकीन करो कि बहुत बार मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और गौर किया कि तुम्हें तलाश करने के लिए कुछ तरीके कार इख्तियार करूं। और मैं तो तुम्हारे मिल जाने पर यही कहता हूं कि कुदरत जब किसी मसले में किसी का साथ देने पर आती है तो इसी तरह के इंतजामात हो जाते हैं। दोस्त, मुझे शामगढ़ में तुम्हारी ज़रूरत है। शामगढ़? और मैंने सवाल किया। हाँ, शामगढ़ में मैंने एक इंतहाई कदीम हवेली खरीदी है और असल में तुम मेरे शौक़ के बारे में तो अच्छी तरह जानते हो। कुछ ऐसे मामलात हो गए हैं कि मैं इस हवेली में दिलचस्पी लेने लगा और उसका एक पसे मंज़र है जो मैं तुम्हें रफ्ता रफ्ता बताऊंगा। और तुम्हें किसी पुरअसरार हवेली में कुछ वक़्त गुजारने में कोई दिलचस्पी है? क्या बात करते हो? और मेरी और तुम्हारी दोस्ती की बुनियाद यही पुरअसरार वाक़यात और कहानियाँ हैं। अगर तुम वाकई सच कह रहे हो और ऐसी कोई बात है तो मुझे बताओ, उस हवेली में ऐसी क्या ख़ास बात है? क्या बताऊं? और यूँ समझ लो कि वह नहायत अजीब और पुरअसरार इमारत है और सदियों पुरानी। सैकड़ों कमरे हैं उसके, गैलरियाँ, बरामदे, गुलाम गद्दे और कमरे में सजे हुए पुराने ज़माने के हथियार और फर्नीचर और कसीर रकम के एवज़ मैंने ये सब कुछ खरीदा है और अब मैं सोच रहा हूँ कि उसे अजायब घर बना दूँ। और अगर तुम कुछ दिन के लिए शामगढ़ आ सके तो बड़ा लुत्फ़ रहेगा। क्या कहते हो? और क्या मैं शामगढ़ की इस हवेली में तुम्हारा इंतज़ार करूं? बहुत ही अच्छा मौका मिला है हमें साथ रहने का, और अगर तुम मुझे दावत दे रहे हो और मैं वहां आने के लिए तैयार हूं। और यूँ समझ लो मैंने तुम्हें दावत दे दी है और वहां पहुंचने के बाद मैं हर लम्हे तुम्हारी आमद का इंतज़ार करूंगा। और तुम्हें एक और कहानी भी सुनानी है मुझे। और समझ लो कि जंगल का शेर अब पिंजरे में आ गया है। क्या मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम शामगढ़ के बारे में तफसीलात सुन लो और ज़रा सा वहाँ से पीछे ठहरना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि रास्ते दुश्वार गुजार हैं और उन तक सफ़र करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और उसने मुझे तफसीलात बताईं और आखिरकार हम जैसा हो गए। उसमें कोई शक नहीं था कि शामगढ़ के उस मखसूस हिस्से तक पहुँचने में मुझे खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और जब मैं उस अजीम शान और हैबतनाक हवेली पर पहुँचा तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई दयाल सिंह दीवाना ही है। कोई होशमंद आदमी उस हवेली को किसी कीमत पर ख़रीदना पसंद नहीं करता। और इंतहाई हैबतनाक हवेली थी और दरो दीवार कद आमद के बाद स्याह पड़ चुके थे और जगह जगह से प्लस्तर उखड़ जाने की वजह से बदनुमा ईंटें झांक रही थीं। हवेली के चारों तरफ वसी और जंगल फैला हुआ था। और बहरहाल मैं जब हवेली में पहुंचा तो दयाल सिंह ने मेरा इस्तकबाल किया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा था, तुम यकीन करो, मुझे यह खौफ है कि अगर तुम यहाँ तक पहुँच भी गए तो दूर ही से इस हवेली को देखकर वापस चले जाओगे। और कुर्बो जवान के रहने वालों ने मुझे एक पागल और दीवाना शख्स करार दे दिया है। आओ अंदर चले आओ। और वह मुझे लिए हुए हवेली के अंदर दाखिल हो गया। इतनी वसी और अरीज इमारत में दयाल सिंह के अलावा 2 आदमी और थे। एक दयाल सिंह का छोटा भाई और दूसरा बाहर से आया हुआ एक मुलाजम।
जो गालबन नेपाली था और दयार सिंह के बहुत काम आया करता था। वो दयार सिंह का ड्राइवर खानसामा और थोड़ा सा वक्त गुजारने के बाद जो अंदाज़ा हुआ वो ये कि उसका ख़ास मशीर भी था। और मैंने हैरानी से कहा कि इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ ये 3 अफराद, बाकी कहाँ गए? भाग गए। और दयार सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया, इसका मतलब है कि हाँ क्यों नहीं, मगर वो भाग क्यों गए? इसलिए कि वे इस हवेली को बदरूहों की क़यामगाह समझते हैं। बहरहाल मैं उसकी तरह दलेर आदमी नहीं था और मैंने अपने जिस्म में खौफ की एक लहर महसूस की, और उसकी वजह शायद ये भी थी कि हवेली को देखकर यही एहसास होता था कि उसमें बदरूहें ज़रूर रहती होंगी, क्योंकि ऐसी पुरइसरार बदनुमा और मनहूस हवेली बदरूहों का मस्कन ही हो सकती है। ताहम मैंने दयार सिंह से सवाल किया, और मेरा तो ख्याल है कि इस कदीम और खौफनाक हवेली को तुम ज़बरदस्ती बदरूहों का मस्कन बनाने पर तुले हुए हो। वैसे एक बात बताओ कि तुम इस हवेली को असीब ज़दा क्यों कहते हो? और इसका अंदाज़ा तुम्हें खुद हो जाएगा। मेरा मतलब है कोई ऐसा वाक़या तो कोई ख़ास नहीं, लेकिन कुछ पुरइसरार और लर्ज़ा खेज़ आवाज़ें यहाँ ज़रूर सुनी जाती हैं। और वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि दयार सिंह ने मेरे कान के पास सरगोशी करते हुए कहा, यह किसी की शरारत भी हो सकती है और मुमकिन है कि कुछ लोग मेरा यहाँ क़याम ना चाहते हों। वो क्यों? और सारी बातें उसी वक्त पूछ लोगे और हफ्ता हफ्ता तुम्हें सारी तफसीलात बताऊंगा। रात को खाने की मेज़ पर जब हम सब जमा हो गए तो दयार सिंह ने कहा, हम तुमने मुख्तसरन ये हवेली देख ली होगी, और इसकी तारीख के बारे में मुझे जो मालूमात हासिल हुई हैं वो ये हैं कि तकरीबन 400-500 साल पुरानी है। अगरचे इसका बड़ा हिस्सा खंडरों और वीरानों में तब्दील हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद तुम देख रहे हो कि इसके बहुत से गोशी अब भी रिहाइश के काबिल हैं। और मैंने इसे ख़रीद लिया था, और मेरे यहाँ आने के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद का जिक्र है कि मशरिकी हिस्से में वाक़या एक कमरे से अजीब तरह की आवाज़ बुलंद हुई, और उस वक़्त रात के 11 या 12 बज रहे होंगे। हर तरफ फैले हुए दहशतनाक सन्नाटे को चीरने वाली ये आवाज़ मेरे कान में आई और मैं भी हैरत से उछल पड़ा, और मुझे यूं लगा जैसे कोई मदब सुरों में माउथ आर्गन बजा रहा हो। और आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ बुलंद होने लगी, और फिर उसमें इंसानी चीखें शामिल हो गई। 2-2.5 घंटे तक ये आवाज़ें गूंजती रही, और फिर ये आवाज़ बंद हो गई। और मेरे साथ आए हुए मुलाजिम मेरे पास आए और कहने लगे, सर यहाँ तो अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं, और आखिरकार लोगों की कही हुई बातें सच साबित हो रही हैं। लोगों की कही हुई बातें? हाँ, आसपास के लोग बताते हैं कि हवेली असीब ज़दा है और उसमें भूत प्रीत रहते हैं। सर, हम गरीब लोग हैं और परेशान हैं, और यहाँ खौफ महसूस हो रहा है। और क्या कहते हैं यहाँ के रहने वाले लोग? वो कहते हैं सर कि हवेली में आज तक कोई मुस्तकिल तौर पर नहीं रह सका, और जिसने यहाँ रहने की कोशिश की वो पागल हो गया या उसे जान से हाथ धोने पड़े। तुम लोग खौफज़दा ना हो, और कल की दिन की रोशनी में हम देखेंगे कि क्या किस्सा है। और वैसे मैं यूरोप में रह चुका हूँ, और वहाँ भी इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन जब भी कभी इन वाक़यात की तहकीक की गई तो पता चला कि कुछ लोग मुजरमाना कार्रवाइयों के लिए ऐसी इमारतों को असीब ज़दा करार दे देते हैं, और उसके बाद लोगों के वहम से फ़ायदा उठाकर वहाँ अपनी मुजरमाना कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं। और हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। चुनाचा अगले रोज़ आधी रात के बाद फिर कमरे से सीटियों, सिसकियों और रोने की आवाज़ आई, और देर तक उस हवेली के दरो दीवार गूंजते रहे। और मैंने अपनी राइफ़ल उठाई और उस कमरे की जानब चल पड़ा जो ख़ास तौर से हवेली के उस गोशे में था, और आवाज़ें बिलाशुबा उसी कमरे से आ रही थीं। यूरोप की ज़िंदगी में भूत प्रेत का तस्वर ज़्यादा दूर तक का तस्वर है, और हर शख्स उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाता, जबकि यहाँ बकौल मेरे दोस्त दयार सिंह के आधी आबादी असीब ज़दा हैं। और बहरहाल ये मामला खासा दिलचस्प मालूम हुआ, और मुझे मुकम्मल तफसीलात तो मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल ये आवाज़ें मेरे लिए भी बाइसे दिलचस्पी थीं। चुनाचा हम लोग इत्मीनान से उस कमरे का ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गए, और हमने सर्च लाइट चारों तरफ फेंकी, और अंदर कदम रखते ही आवाज़ें इतनी तेज़ हो गईं कि कानों के पर्दे फटने लगे, और ख़ुद मेरा सर घूमने लगा और बदन के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर मैं घबरा कर कमरे से बाहर निकल आया और दरवाज़ा मुतकफ़ल कर दिया। और उस दिन से लेकर आज तक रोज़ाना आधी रात से लेकर सूरज तुलू होने तक उस कमरे से मामूली वक्फे के बाद आवाज़ें आती हैं, और कभी सीटियाँ बजती हैं, और कभी बाजे और कभी चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन चीखों से जो मुझे अंदाज़ा हुआ है वो ये है कि ये किसी ऐसे शख्स की हलक से निकलती हैं जिसे शदीद अज़ियत दी जा रही हो। और दिन में रोशनी में मैंने 12 कमरे का मुआयना किया, मगर कोई काबिल ज़िक्र बात नज़र नहीं आई, और इस ख्याल से कि शायद किसी ने शरारत से
कोई मशीन या माइक्रोफोन दीवार या फर्श में फिट कर रखा हो। फर्श और दीवार का भी बगौर मुआयना किया है, लेकिन उन पुरअसरार वादों का कोई सुराग नहीं मिला। और दफ्तर में चुप हो गया और फिर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। और फिर उसने आहिस्ता से कहा, सुनो। और आवाज़ें शुरू हो गई हैं और हवेली की मशरकी हिस्से से हवाई लहरों पर तैरती हुई मध्यम सी आवाज़ मेरे कानों में आई। और बाहर कुछ फासले पर कोई शख्स बाजा बजा रहा था और जिस कमरे में हम बैठे थे उसके दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। और मैंने उठकर खिड़कियां खोल दी और आवाज़ तेज हो गई। वो एक लंबी और चीखती हुई आवाज़ थी और बाहर फैली तारीकी के भयानक माहौल में ये आवाज़ हद दर्जे खौफनाक लग रही थी। और मेरा दिल धक धक करने लगा और रीढ़ की हड्डी में बिच्छू से रेंगते महसूस होने लगे। और ये आवाज़ सुनकर मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि कोई इंसानी आवाज़ नहीं थी और ना किसी ऐसी मशीन से निकल रही थी जो जानबूझकर कमरे में छुपा दी गई हो। और आवाज़ भी मध्यम और कभी तेज़ हो जाती, लेकिन उसमें दर्द, कर्ब और तकलीफ़ की शिद्दत का जो इज़हार था वो बदस्तूर था। और बहुत देर तक मैं ये आवाज़ सुनता रहा और फिर मैंने खिड़की बंद कर दी। सब मेरी जन्म देख रहे थे और दयाल सिंह ने कहा, कहो अब क्या कहते हैं, और तुम्हारे ख्याल में क्या ये किसी की शरारत है? और अभी इसके बारे में तुमने बहुत सारे सवालात करने हैं। और पहला सवाल ये कि तुमसे शरारत क्यों समझते हो, और दूसरा ये कि क्या तुम्हें यहाँ किसी से दुश्मनी है? दयाल सिंह सोच में डूब गया और फिर कहने लगा, अजीब सी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे तुम्हें ये तफसील बता देनी चाहिए। बात दरअसल ये है कि यहाँ शामगढ़ में एक इतनी हसीन लड़की रहती है और जिसने मेरे ज़हन से यूरोप की तमाम यादों को छीन लिया। और वैसे भी मैं अपने बातन को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ और यूरोप में रहकर भी मैंने इन किस्से कहानियों में अपना नाम शामिल नहीं किया जो रूमान ज़दा अफराद यूरोप से साथ लेकर आते हैं। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरी मुलाकात उषा कुमारी से हुई। और उषा कुमारी हुस्न व जमाल का एक ऐसा शाहकार है कि उसे देखकर इंसान अपने दिल की धड़कनों की तेज़ी महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। अब ये मेरी खुशकिस्मती है कि उषा कुमारी मेरी जन्म मतवजा हो गई और उसकी उम्र 24-25 साल के करीब है। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त पूरन लाल कि मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी हसीन और जमील लड़कियाँ देखीं, लेकिन उस उषा कुमारी हुस्न व जमाल का वो शाहकार है कि उसका कोई जवाब नहीं। और हुस्न सूरत के साथ साथ वो हुस्न सीरत में भी बेमिसाल है। और वह यहाँ के कदीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और ये ख़ानदान हवा महल के मालकान में शुमार होता है और बहुत बड़ा और खूबसूरत ख़ानदान है ये। और यूँ समझ लो कि चंदर बाण यहाँ के मालकान में से है और मेरा मतलब है कि उस इलाके के मालकान से। और लड़की नहायत खुश अखलाक, तालीम याफ्ता और हाज़िर जवाब और मुखातब की नफ्सियात समझ कर गुफ्तगू करना जानती है। उसने खुद ही मेरी जन्म कदम बढ़ाए और चंद मुलाकातों के बाद मैं उसका गर्विदा हो गया। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि वो भी मुझे पसंद करती है, जबकि शामगढ़ और उसके नवाही इलाकों के कुछ अफराद जो बड़े साहब हसीयत हैं उस पर डोरे डालने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मेरे सामने उनकी दाल नहीं गलती। और फिर मैंने एक दिन उससे इज़हार मोहब्बत कर दिया और उसने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली। वो साहब इख्तियार है और अपने मुस्तकबिल के बारे में खुद फैसला कर सकती है और बहरहाल हम दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे। ओहो अच्छा, एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उषा कुमारी जी के सिलसिले में मैं ही कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए हों और तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हों? और ये भी हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए ये सारा चक्कर चलाया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है और मैंने भी इसके बारे में सोचा है, लेकिन इन आवाज़ों का उस कहानी से कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। और अगर है भी तो बहरहाल मैं उनकी इस साजिश को नाकाम बना दूंगा। और एक बात बताइए दयाल सिंह जी, आपने यह हवेली ख़ास तौर से क्यों खरीदी? और शामगढ़ तो अच्छा खासा तरक्की याफ्ता इलाका हो चुका है और मैंने यहाँ आने के बाद देखा है। हाँ मैं जानता हूँ, और ये मशवरा मुझे किसी ने नहीं दिया, बल्कि यह ख्याल खुद ब खुद मेरे दिल में आया था। और तुम समझते हो कि मेरे दोस्त के जब इंसान कभी किसी ऐसे जाल में फंस जाता है तो ना जाने क्या क्या अमल करता है। और मैं तुमसे ये बात कभी नहीं छुपाऊंगा कि मैंने उषा कुमारी को मुतासर करने के लिए हवेली खरीदी थी और उषा कुमारी इस हवेली के खरीदने से मुतासर हुई। असल में ये हवेली मैं उसे तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वह चंदर बाण ख़ानदान से है और यह हवेली चंदर बाण ही ने बनाई थी। और मैं जानता हूं कि मेरे इस तोहफे पर वो बहुत खुश होगी, क्योंकि ये एक अजीब गरीब तोहफा होगा। क्या उसे इस हवेली के ख़रीदने का इल्म है? मैंने सवाल किया और वो हैरत से मुझे देखने लगा और फिर बोला, हाँ क्यों नहीं। और एक रोज़ शाम के वक़्त जब मैं उसके घर में चंद मुश्तरका दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था,
और उन दोस्तों में चंद वो अफराद भी थे जो उषा कुमारी से कुर्बत के ख्वाहिशमंद थे। और मैंने शेखी में आकर वहाँ कहा था कि शादी के बाद मैं उसे हवेली में हनीमून मनाऊंगा। ओहो, और ये तो वाकई दिलचस्प बात है। और क्या वह खुश हुई? नहीं, उसके बरअक्स उसका रंग फक हो गया और उसने डरती हुई आवाज़ में कहा, और क्या आपको ये बात मालूम है कि दयाल सिंह कि उसके एक कमरे से तरह तरह की डरावनी आवाज़ें आती हैं? हाँ, और मैंने बहुत कुछ सुना है उसके बारे में, लेकिन मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। और मैंने एक रोशन ख्याल खित्ते में ज़िंदगी गुजारी है और भूत प्रीत वगैरह मुझे मुतासर नहीं कर सकते। और वो लोग जब वहाँ शरीक थे हंस पड़े और फिर उनमें से एक ने कहा, एक बात कहें आपसे मिस्टर दयाल सिंह, हम आपके दोस्तों में से हैं और दुश्मनों में से नहीं। हमारा पुरखलूस और हमदर्दाना मशवरा है कि आप ये इमारत मत खरीदें, क्योंकि गुज़श्ता 20 वर्ष में ये इमारत कितनी ही मरतबा फ़रोख्त हुई है और उसे खरीदने वाले या तो पागल हो गए या नामालूम तौर पर मौत के घाट उतर गए। और यह हवेली भूतों और बदरूहों की हवेली मशहूर है। मैं उस शख्स की बात पर हंस पड़ा और मैंने कहा, ये लोग मुझे डरा रहे हैं उषा जी, लेकिन मैंने ऐसे बेशुमार भूतों का मुकाबला किया है और बहुत से बड़े बड़े भूतों को नीचा दिखाया है, और मुमकिन है कि ये हवेली मैं कभी नहीं खरीदता, लेकिन आप लोगों ने मेरे शौक़ को भड़का दिया है, चुनांचे अब मैं उसे ज़रूर खरीदूंगा। आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप उसमें नहीं रह सकेंगे, और अगर आप उसमें रह गए तो मैं आपको उसकी कीमत पेश कर दूंगा। और आप बहुत बड़े आदमी हैं, और क्या आपने कभी उस हवेली को खरीदने के बारे में सोचा? और एक बेवकूफ़ ही उस हवेली के लिए रकम खर्च कर सकता है, और मैं समझता हूँ कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। बहरहाल जब तन्हाई में उषा कुमारी से मेरी मुलाकात हुई तो उसने एक बार फिर मुझे समझाने की कोशिश की और कहा कि मैं उस हवेली को ना खरीदूं, क्योंकि वह वाकई असीब ज़दा है, और ख़ास तौर से उसका एक मशवरा, एक मशरकी कमरा तो वाकई बहुत ख़तरनाक है। और मैंने उषा कुमारी से मुस्कुराते हुए पूछा, मगर उषा जी, ये तो आपके आबा अजदाद की हवेली है, और क्या आपके दिल में कभी ये ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि आप उसकी मालिक बने? उषा कुछ देर सोचती रही और फिर उसने कहा, मैं हकीकतों की दुनिया में रहने वाली हूँ। अच्छा ये बताइए कि क्या आपने वो आवाज़ें आप अपने कानों से सुनी हैं? नहीं, वो आवाज़ें मैंने नहीं सुनी, और ना ही किसी और को हवेली से बाहर आने वाले ने, और उन आवाज़ों को उस हवेली में जाने और रहने वाला ही सुन सकता है। बहरहाल मिस किरण, उस हवेली के मतलब इतनी बातें सुनकर सच्ची बात यह है कि मैं दोहरी कफियत का शिकार हो गया हूँ। एक तरफ तो मेरे ज़हन पर एहसास भी सवार था कि कहीं यहाँ मुझे और मेरे दोस्त दयाल सिंह कोई नुकसान न पहुँच जाए, लेकिन दूसरी तरफ मैं इन तमाम हकीकतों को जानना भी चाहता था। बहरहाल मैंने उस मशरकी हिस्से का तफसीली जायजा लिया और असीब ज़दा कमरे पर खसूसी तवज्जो दी, और दीवारों और फर्श को खूब अच्छी तरह ठोंक बजा कर देखा, और दरवाजे और खिड़कियां देखीं, लेकिन कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। अलबत्ता जब तक मैं उस कमरे में रहा, मेरे ज़हन पर यही एहसास सवार था कि इस कमरे में कोई नादीदा हस्ती मौजूद है जो मेरी हरकत का जायज़ा ले रही है, और एक अजीब सी बेचैनी और अनजाना सा खौफ मुझ पर तारी था। लेकिन मुझे यूँ लग रहा था जैसे कमरे की दीवारें, ऊंची छत खूनी निगाहों से मुझे घूर रही हों, और मेरे पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए थे और जिस्म पसीने की नमी महसूस कर रहा था। बहरहाल हम बाहर निकल आए और मैं हवेली के उस कमरे में आ गया जो दयाल सिंह ने मेरे लिए मखसूस किया था। मैं सोचता रहा, लेकिन कोई सही फैसला न कर सका, और सूरज छुपा और फिर रात हो गई, और मेरा जहन मुसलसल उस मुश्किल का शिकार रहा था, और मैं सोचों में डूबा रहा, लेकिन कोई फैसला ना कर पाया। और फिर उस वक़्त रात के 10 बजे थे जब हम खाने से फारग हुए, और हमारे पास उस असीब ज़दा हवेली के अलावा और कोई मौजू नहीं था, और हम इस वक्त भी उसके बारे में बातें कर रहे थे कि दफतन दयाल सिंह के भाई विक्रम सिंह ने होठों पर उंगली रखकर सबको खामोश रहने का इशारा किया और सरसराती हुई आवाज़ में बोला, रुको, गौर से सुनो। और मेरा ख्याल है कि आज ये आवाज़ वक़्त से कुछ पहले ही सुनाई दी है। और मैंने घड़ी पर निगाह डाली, 10 बज रहे थे, और इससे बेशतर कि ये आवाज़ें 12 बजे के बाद सुनाई देती थीं। और इब्तिदा में यूँ महसूस हुआ कि जैसे कोई शख्स दर्द अंगेज सुरों में गीत गा रहा हो, लेकिन ये गीत के बोल समझ में नहीं आ रहे थे, और हम सांस रोके बेहिसो हरकत बैठे ये आवाज़ सुनते रहे, और अचानक ही गीत भयानक चीखों में तब्दील हो गया, और ये चीखें एक ऐसे शख्स के हलक से निकलती हुई मालूम होती थीं जो दर्द की शिद्दत से तड़प रहा था। और दयाल सिंह पर ना जाने क्या दीवानगी तारी हुई कि यकायक वह अपनी जगह से उठा और एक तरफ रखी हुई राइफल उठाकर वसीली आवाज़ में बोला, मोमबत्तियां रोशन करके मेरे साथ आ जाओ, और ये मजाक अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आओ आज कुछ करेंगे। और किसी ने उसके हाथ से इख्तलाफ नहीं किया और मैंने भी नहीं।
हमने मोमबत्तियां जलाई और दबे पांव मशरकी हिस्से की जानब चल पड़े और कुछ लम्हे बाद हम एक लंबी और सनसान गुलाम गर्दश अबूर करके असीब ज़दा कमरे के पास पहुंच गए और आवाज़ें कमरे से जैसे छन छन कर बाहर आ रही थीं। हम धड़कते दिलों से आवाज़ सुनते रहे और फिर चीखें मदहम हो गईं और उनकी जगह सिसकियां सुनाई देने लगीं। दयाल सिंह ने बंदूक मुझे थमाकर जेब से चाबी निकाली और हिस्सा से ताला खोला और सिसकियों की आवाज़ जैसे फौरन ही बंद हो गई। हम आगे बढ़े और कमरे में अंदर दाखिल हो गए। हर तरफ जानलेवा और गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और हम सब सनसीखेज निगाहों से चारों तरफ देख रहे थे। मोमबत्तियों की पीली और मध्यम रोशनी में दीवारें जैसे अपनी जगह तब्दील कर रही थीं और पुरअसरार आंखें और हल्के हल्के सांस हमें सुनाई दे रही थीं। और कुछ देर इसी तरह गुजर गई और फिर अचानक की ऐसी भयानक चीख बुलंद हुई कि कोई इंसान उसे बर्दाश्त न कर सके। और हम लोग भी तो इंसान ही थे और सबसे पहले दयाल सिंह ने ही अपनी मोमबत्ती फेंकी और उसके बाद कमरे से बाहर छलांग लगा दी। फिर उसके बाद किसकी मजाल थी कि उस कमरे में रुकता। 100 मीटर की रेस शुरू हो चुकी थी। हम उस राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंच कर रुके और सब बुरी तरह हाँप रहे थे और कमरा खून जमा देने वाले चीखों से ना सिर्फ गूंज रहा था बल्कि ये आवाज़ें पूरी हवेली के दरो दीवार को लर्ज़ां कर रही थीं। और वहाँ से भागने की इब्तदा दयाल सिंह ने ही की थी और इंसान तो बहरहाल इंसान होता है और दयाल सिंह की बुज़दिली ने सबको बुज़दिल बना दिया था और मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। कुछ देर खामोशी तारी रही और फिर थोड़ी देर बाद मैंने दयाल सिंह से गुस्सीले लहजे में कहा, तुम तो राइफल लेकर निकले थे माय डियर दयाल सिंह, और आज पता लगाकर ही रहेंगे और ये तुमने क्या किया? यार बस कमाल हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं देखता हूँ। और मेरी बात तो सुनो, और मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अजीज है, प्लीज़ रुक जाओ। छोड़ो यार, बेकार बातें कर रहे हो और मुझे क्यों बुलाया था यहाँ? और मैंने झटका देकर हाथ छुटाया और दंदनाता हुआ असीब ज़दा कमरे की जानब चल पड़ा। और मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कुछ लोग चले आ रहे हैं और ये विक्रम सिंह और उसका दूसरा साथी था। कमरे के फर्श पर पड़ी हुई मोमबत्तियां अब भी जल रही थीं और मोम तेजी से पिघल रहा था। और मैंने देखा कि दयाल सिंह और उसका भाई और वो तीसरा शख्स जो नेपाली था वो सब मेरे पीछे आ रहे थे। और मैंने घुराते हुए कहा, या तो वापस चले जाओ या आ सकते हो तो अंदर आ जाओ, और यहाँ कुछ नहीं है और मैं देखता हूँ कि ये कौन है और ये डरावनी आवाज़ें हमारा क्या बिगाड़ लेती हैं। और मेरे इन अल्फाज पर एकदम कमरे में गूंजने वाली आवाज़ें मदम हो गईं और मैंने गिरी हुई मोमबत्तियाँ सीधी की और उनमें से एक उठाकर कमरे का जायज़ा लेने लगा। मदम आवाज़ें अब भी कानों में आ रही थीं, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं होता था कि ये किस रुख से आती हैं। और मैंने बारी बारी हर दीवार से कान लगाए और हर बार यही महसूस हुआ कि ये आवाज़ उसी दीवार से आ रही है। लेकिन अंदर से आने वाली इन आवाज़ों का राज क्या था? और इसका मतलब तो ये था कि मुझे दीवारें खोदनी पड़ेंगी। और ना जाने क्यों अब मुझे यकीन होता जा रहा था कि वो लोग जो ओशा कुमारी के तलबगार हैं ये नहीं चाहते कि ओशा कुमारी की शादी दयाल सिंह से हो, और उन्होंने दयाल सिंह को खौफजदा या कोई और कार्रवाई करने के लिए इन दीवारों में स्पीकर वगैरह फिट कर रखे होंगे। बहरहाल मेरे दिल में खौफ का वो गुजर नहीं था जो पहले था और मैं बड़े इत्मीनान से कमरे की दीवार टटोल रहा था। और मेरी इस हिम्मत पर उन लोगों के अंदर भी हिम्मत पैदा हुई और वह कमरे में दाखिल हो गए। तीनों ने अपने अपने हाथों में रिवाल्वर पकड़े हुए थे और जैसे शिकार खेलने आए हों। और अभी उन्होंने कमरे में कदम रखा ही था कि एक बार फिर भयानक और खौफनाक चीखों का तूफान बुलंद हुआ और जलती हुई मोमबत्तियां हमारे हाथों में बुझ गईं। हालांकि उनके बुझने का कोई इम्कान नहीं था और ना ही ये बात समझ में आई थी कि ये मोमबत्तियां कैसे बुझ गईं। और साथ ही कमरा पहले से ज़्यादा खौफनाक और ज़ोरदार चीखों से गूंज रहा था और ये आवाज़ें तेज़ से तेज़ होती जा रही थीं। और मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे कानों के पर्दे फटे जा रहे हों और कमरे की छत गिरने वाली हो। हमारे पैरों के नीचे फर्श भी लर्ज रहा था और ज़मीन हमें अपनी जगह से हिलती हुई महसूस हुई। और अचानक ही मैंने चीख कर दयाल सिंह से कहा, दयाल सिंह तुम बाहर आ जाओ। और मोमबत्तियाँ तमाम बुझ गई थीं और दयाल सिंह समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ है। और कमरे की बुलंद चीखों में मेरी आवाज़ बिल्कुल गुम हो गई और मैंने तारीकी में टटोल कर दयाल सिंह को ज़ोर से धक्का दिया और दरवाजे से वो बाहर जा पड़ा। एक बार फिर दयाल सिंह के भाई और नेपाली के हौसले पस्त हो गए थे और चुनाचा वो भी कमरे से बाहर निकल आए। अब उस तारीकी में उस कमरे में मजीद रहना बेकार था और दिल मेरा भी लर्ज रहा था इन खौफनाक आवाज़ों से। और यूँ महसूस हो रहा था जैसे अगर हम कमरे से ना निकले तो मर जाएंगे। चुनाचा मैं भी कमरे से बाहर निकल आया और जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला अचानक एक गहरी खामोशी छा गई।
हम लोग सकते के आलम में खड़े हुए थे और इतनी बार हिम्मत करके हम कुछ करने के लिए यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। बहरहाल चंद लम्हे ये खामोशी तारी रही और फिर अचानक एक खौफनाक कहका बुलंद हुआ और उसके बाद बदस्तूर कहके उबलने लगे और जैसे हवेली का आसिब हमारे खौफ पर मजाक उड़ा रहा हो। और आखिरकार हम वहाँ से चल पड़े और जब हम राहदारी के आखिरी सिर पर पहुँचे और तब वो कहके बंद हुए और दयाल सिंह की क़यामगाह जुनूबी हिस्से में थी और हम वहाँ पहुँचकर बड़े और वसी अराज कमरे में पहुँच गए और कमरे की दीवारें, छत और फर्श पत्थर का था और एक बहुत बड़ा लैंप रोशन था। ना सिर्फ दयाल सिंह बल्कि बाकी दोनों अफराद के चेहरे भी खौफ से हल्दी की तरह जर्द हो रहे थे और दयाल सिंह ने आंखें भींच कर गर्दन झटकते हुए कहा, मुझे पता नहीं चलता और मैं समझता हूँ कि कोई पता चलेगा भी नहीं और मैं कल इस कमरे को खुदवा दूंगा और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने अपनी पेशानी से पसीना पोंछते हुए कहा, इसलिए कि माय डियर दयाल सिंह, अब हमें किसी बदरूह की मौजूदगी के अमकान पर भी गौर करना होगा। और क्या तुम बदरूहों पर यकीन रखते हो? और विक्रम सिंह ने सवाल किया और मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगा। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है विक्रम सिंह? और क्या तुम बदरूहों पर यकीन नहीं रखते? हरगिज़ नहीं, लेकिन बस। तो फिर तुम मुझे बताओ कि क्या कहते हो इस सिलसिले में, और क्या ये काम किसी इंसान का है? फर्ज करो कि हम कमरा खुदवा भी देते हैं और अगर ये आवाज़ें उसके बाद भी बंद ना हुई तो क्या होगा? और मैं समझता हूँ कि जज्बात या जोश में आए बगैर ठंडे दिलो दिमाग से इस मामले पर गौर करें। और अगर ये हमारे जैसे गोश्त पोश्त के बने हुए किसी इंसान की शरारत है तो आखिरकार हम उसका सुराग लगा ही लेंगे। और अगर ये किसी माफूकल फितरत का कारनामा है तब भी कुछ न कुछ किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल मौजूद है और आखिरकार हम इस मुश्किल का हल भी दरियाफ्त कर लेंगे। और अगर इन कोशिशों में हम में से किसी की ज़िंदगी चली गई तो, और हम सब सोच में डूब गए।